Lord is good and His mercies endure forever. Let's rise up and let's praise His holy name, for He is worthy to be praised. Let the heavens rejoice, let the earth be glad, let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valleys, come and lift your voice. All those on the mountain top, be glad, shout for joy. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him, worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Let the heavens rejoice, let the earth be glad, let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those on the mountain top, be glad, shout for joy. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him, worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him, worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Rise up and praise Him. Rejoice together. Sing. Rise up and praise Him. Oh. तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं।
अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं। Well, good evening and praise the Lord. गुड इवनिंग और परमेश्वर की स्तुति हो। It is such a privilege to come here this evening in your homes आज शाम को आपके घरों में आकर ये कितना बड़ा सौभाग्य है and to fellowship with the Word. और वचन से आपसे सहभागिता करने में I'm really humbled and thankful to our pastor, Pastor Joshua, मैं बहुत नम्रता के साथ में धन्यवाद देती हूँ हमारे पास्टर जोशुआ को for this opportunity to come and minister the Word of God. कि जिन्होंने मौका दिया कि ये मौका के लिए जहाँ पर मैं परमेश्वर के वचन से सेवकाई कर पाऊँ। I'm so happy to be in this place this moment. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज इस जगह पर मैं आ पाई हूँ। And I feel honored and privileged to share with you what God has laid upon my heart. और मुझे बहुत सम्मान और बड़ा सौभाग्य महसूस होता है कि आज मैं आप सबके साथ परमेश्वर के वचन से बात करूं। Well, God is wonderful in all His ways. परमेश्वर अपने हर एक मार्गों से अद्भुत है। He's just in all His ways. वो अपने हर एक मार्गों में न्यायी है। And He's been faithful towards us week after week, day after day, and His mercies are new every morning. वो हर एक सप्ताह हर एक दिन वो विश्वासु रहा है और उसकी दया जो है वो हर एक नए सुबह नई होती है। That His portion, that He has been our portion. कि वो हमारा एक हिस्सा और वतन He बन के has रहा been है। our strength. वो हमारा बल बना है। He's been a strong tower to His church. वो हमारे लिए एक मजबूत एक दृढ़ चट्टान बनकर एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा है। It's wonderful that the saints of God, that the people of God at this moment come together and pray for the nation, to pray for the community. कि ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के संत एक साथ मिलकर इस देश के लिए और पूरे समाज के लिए प्रार्थना करें। It's wonderful that the people of God stand in this gap.
कि ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अद्भुत बात है कि परमेश्वर के लोग उस खाली जगह में As आकर the church is shining brighter than ever. कि कलीसिया जितनी पहले चमकती थी उससे कई ज्यादा और रोशनी से चमक रही है। The darker the world gets, the more brighter the church shines. कि जितना ज्यादा अंधकार में जगत होता है उतनी ज्यादा रोशनी से कलीसिया चमकती Well, है। aren't you happy that you are part of this church? क्या आप खुश नहीं हो कि आप इस कलीसिया का एक हिस्सा हो? Aren't you happy that you're part of this call? क्या आप खुश नहीं हो कि आप इस बुलावे का एक हिस्सा हो? Well, we are a generation that is chosen for this hour. कि हम वो पीढ़ी है कि जिसको इस समय के लिए, इस घड़ी के लिए चुना And गया God है has appointed you and me for this और time. परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे नियुक्त किया है इस समय के लिए Let your prayers never cease. कि तुम्हारी जो प्रार्थना है वो कभी खत्म ना हो, Don't faint, and God will be our strength. कि कभी शांत बैठना नहीं और परमेश्वर हमेशा हमारा बल बनेगा। Well, this evening, would you like to turn with me to the book of John, आज शाम को हम वचन में जाएंगे और यूहन्ना इसकी किताब की ओर बढ़ेंगे, chapter 4, इसका 4वां अध्याय and we look at verse 15. और उसके 15वें पद की ओर हम देखेंगे। The woman said to him, Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water. सामरी ने उससे कहा कि हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हो और न जल भरने के लिए इतनी दूर आओ। We ask of you, Lord God, प्रभु, हम आपसे मांगते हैं come speak to our hearts कि आइए और हमारे दिल से बात कीजिए and speak over our lives. और हमारे जीवन पर बात कीजिए Renew us and strengthen us. कि प्रभु हमें नया करिए प्रभु और हमें ताजा और प्रभु ताकत दीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना Amen. करते हैं, आमीन। This is where Jesus ये वो जगह है जहाँ पर यीशु मसीह is sitting on the well of Jacob. कि याकूब की वो जो कुआं है, याकूब का कुआं, उसके पास बैठे हैं He's tired from a journey कि वो एक सफर कर कर थोड़े थके हुए हैं and he's sitting at this well. और उस कुएं के पास बैठे हैं And there is this woman, a Samaritan woman, और ये सामरी स्त्री है who's coming this afternoon और ये दोपहर के वक्त वो आती है to draw a water for herself. ताकि वो अपने आप के लिए उस कुएं से पानी ले ले। And she has this unique encounter with our Savior. और उसका एक विशेष तौर पर उसकी मुलाकात होती है हमारे तारनहार से। Well, that gives me so much joy because it reminds us of every encounter we had with Christ. और ये बात सुनने से मुझे बड़ा आनंद महसूस होता है क्योंकि मुझे इस बात से मेरी हर एक और हमारी हर एक मुलाकात परमेश्वर से कैसी हुई वो याद An दिलाती है encounter which was life changing. और ऐसी मुलाकात जिसने जीवन परिवर्तित किया। Imagine you and me were walking in a path of life and we suddenly meet a Savior. कि सोचे कि हम और मैं हम एक ऐसे रास्ते के जीवन के रास्ते में चल रहे थे और अचानक हमारी मुलाकात उस तारनहार से हुई And we are bound because our life is gonna change. कि अब ये तो तय है कि हमारा जीवन तो पूरी तरह से And परिवर्तित this हुआ है। woman is going to draw water from this well. ये औरत जो है वो जहाँ पर कुआं है वहां से पानी निकालने की And कोशिश she करती है doesn't even know who she's gonna encounter. और वो जानती तक नहीं कि उसकी मुलाकात किस इंसान से होने And वाली she है। goes there just like probably she goes every afternoon. और जैसे हर दोपहर वो जाती थी वैसे ही वो उस दिन भी जा रही थी And she's going and she's drawing water and she sees Jesus. और वो जाती है वहां से पानी निकालती है और वो यीशु मसीह को देखती है And Jesus asks her for a drink. और यीशु मसीह उसके पानी की मांग करते हैं And she is surprised और वो आश्चर्य से भर जाती है because क्योंकि at those days उन दिनों में it was difficult for a Samaritan to encounter with a Jew. कि ये सामरी लोगों के लिए काफी कठिन था कि उनका सामना या उनकी बातचीत या कोई भी रिश्ता यहूदियों से हो। And so she is marveled that he is breaking the tradition and he's coming and he's encountering her. तो उसके लिए बड़ी ताज्जुब की बात हुई कि ये यहूदी होने के बावजूद ये एक सामरी से कोई ताल्लुक रखता है, उससे बात करने की कोशिश And कर she रहा है questions him. और वो उससे इस बात से सवाल करती How है is it that you are asking me for a drink? कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि आप मुझसे प्याला मांग रहे हो। And Jesus turns around and tells her और यीशु मसीह उसको मुड़कर बताते हैं that if you only knew who was asking for the drink, कि यदि तू जानती कि तुझसे पानी कौन मांग रहा है you would ask him for the drink तो तू खुद से उसे पानी मांगती and he would give you water that would satisfy you for eternity. और वो तुझे ऐसा पानी पिलाता जो तुझे हमेशा के लिए संतोषित करता। I have a question for us this evening. मेरे पास हम सब के लिए एक सवाल है आज In शाम। our day-to-day life, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में where are we drawing from? कि हम कहाँ से पानी निकालने की कोशिश करते हैं। Each of us have a thirst in our life, in our heart, in our
in our being. कि हम सबके पास अपने दिल में, अपने मनों में, अपने जीवन में कहीं ना कहीं कोई प्यास होती है। Just like she had a physical thirst, जिस प्रकार उसके पास एक शारीरिक प्यास थी उस स्त्री के पास, there are people who have thirst and we have a incompleteness and a need. तो हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ पर जिनके पास ऐसी कोई खालीपन होता है, ऐसा कोई अधूरापन होता है, उनको कोई जरूरत होती है किसी बात की, And we try to fill it और हम कोशिश करते हैं उस बात को भरने की with the things of this world. इन जगत की चीजों से। It could be our jobs, वो हमारे काम हो सकते हैं, it could be our families, वो हमारा परिवार हो सकता है, it could be our money. वो हमारा पैसा हो सकता We है। just feel that if we have more of this, it would be enough. तो हमें लगता है कि इन सारी बातों का अगर हमारे जीवन में ज्यादा हम उनकी तादाद लेते या वो अधिक बातें हो जाए हमारे जीवन में, तो हमारे पास काफी होगा ये There's सब। always a space for being discontent. लेकिन हमेशा अगर देखा जाए तो असंतोषित रहने के लिए एक जगह बनी जाती है। There's probably a feeling that is not enough. तो एक ऐसी भावना होती है जो कभी काफी महसूस नहीं करती। And this woman और ये जो औरत है was coming to this well. वो इस कुएं के पास आ रही She थी। had a physical need for a drink, उसके पास एक शारीरिक जरूरत थी उस but प्याले she की, had an emotional need लेकिन उसके पास एक भावनिक जरूरत भी थी। as well. As we read further, जैसे हम आगे पढ़ते तो पता चलता है, we come to know हमें पता चलता है that ये she is a very discontent person in her life. कि वो अपने वैयक्तिक जीवन में काफी असंतोषित स्त्री थी। Because when Jesus tells her to call her husband, क्योंकि जब यीशु मसीह कहते कि अपने पति को बुलाने के लिए उसे, she says she doesn't have one. तो वो कहती कि उसके पास एक नहीं है अभी। And later Jesus reveals that yes, she had been living with 5 men, and the one she was living with currently, he wasn't her husband. तो यीशु मसीह ने आगे जाकर उसको बताया कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तू पहले 5 लोगों के साथ रहती थी और अभी भी जो पुरुष तेरे साथ रहता है वो तेरा पति नहीं है। Which shows us that she wasn't a content person in her life. जो हमें ये दिखाता है कि वो अपने जीवन में संतोषित व्यक्ति नहीं She थी। had a vacuum in her life which needed a filling that was greater than the things of this world. तो उसके जीवन में एक खालीपन था कि जिसको भरना जरूरी था और वो जगत की बातों से भरा नहीं जा सकता। And each of us are in the same manner. और हम में से सब लोग ऐसे दशा में होते हैं It would be wrong to judge her at this moment, कि ऐसे घड़ी में उसका इस प्रकार से न्याय करना या उस पर कुछ बात कहना ये गलत हो सकता है, because each of us have a part of our life क्योंकि हम में से हर एक के जीवन में ऐसा कोई ना कोई हिस्सा होता है that is discontent कि जो असंतोषित होता or है that's not enough, या फिर वहां पर कोई काफी नहीं होता, just like this lady. इस औरत के And समान। we're going back and back to that well to draw water, और उस कुएं के पास बार बार जाते हुए वहां से पानी निकालने की कोशिश करते हैं thinking that it will satisfy us. कि ये सोचकर कि वो बात हमें संतोषित We करेगी। keep going and buying things thinking that we'll feel happy and feel content. हम जाकर ऐसे चीजें खरीदते ये सोचकर कि हम खुश महसूस करेंगे। उसके बाद We keep thinking that if we get this better job or this better house or this better home, we will be content and we'll be happy and we'll have everything in life. हम ये सोचते कि अगर मुझे इससे बेहतर नौकरी मिलेगी, इससे बेहतर बातें मिलेगी तो मैं अपने जीवन में तृप्त और संतोषित रहूंगा। Discontentment ये असंतोषित, is a miserable state, ये बड़ी ही खराब दशा and है it causes you to do so much damage to yourself. और इस बात के तहत आप अपने आप को इतनी तकलीफ और बुरी बातें तकलीफ पहुंचाते हो। Being discontent or As- dissatisfied, असंतोषित होना, unsatisfied, कि असंतोषित रहना, will always leave you for wanting more. कि ये आपको हमेशा ऐसे जगह पर ले आएगा जहां पर आप और अधिक चाहोगे। And it comes to a place where even the things that are in your life, you stop valuing the things or you undervalue things. और ये बात इस हद तक हमें ले जाती है कि जो चीजें हमारे जीवन में है वो चीजों का मोल हम खो देते हैं और उससे भी संतोष हमको नहीं मिल पाता। It's a miserable state. ये बड़ी खराब दशा है And we can't blame the woman for just going, changing the people in her life. और ये सही बात नहीं है कि हम उस स्त्री पर इस प्रकार से दोष लगाए कि उसके जीवन में इतने सारे लोग आकर बदले, Because she was in a state of unsatisfaction. She was in a state where she was unsatisfied. क्योंकि वो ऐसी दशा में थी जहां पर वो असंतोषित थी And she was looking for something that would fill her on the inside. और वो ऐसी चीज के खोज में थी जो उसको अंदर से भरे। Nothing in this world, जगत में ऐसी कोई बात नहीं है, nothing in this world जगत में ऐसी कोई बात नहीं can है measure up filling that gap and that space in your life. कि जो आपके जीवन में वो खाली जगह है, जो खालीपन है, उसको पूरी तरह से भरे। Everything you think
जो भी आप सोचते हो, everything you think that is more than enough for you today जो भी आप सोचते हो कि आज आपके लिए वो काफी होगी, is going to leave you wanting more tomorrow. तो आपको कल के दिन में आपको उस चीज की और अधिक चाहने की कोशिश में आपको फंसा देगी। Which part of your life आपके जीवन का ऐसा कौन सा हिस्सा do you feel you're not enough? It's आप- not enough. आपको लगता है कि वो चीज वहाँ काफी नहीं है? Which part of your life are you working and drawing from, thinking that one day it will be enough? आपके जीवन के ऐसे कौन सी जगह पर आपको लगता है कि आप बड़ी कोशिश कर रहे हो और आपको लगता है कि एक दिन वो काफी होगा? Let me tell you one thing. मैं आपको एक बात बताती हूँ, It will never be enough. वो चीज कभी आपके लिए काफी नहीं Let me होगी। say it again. It will never be enough. मैं आपको वापस कहती हूँ कि वो कभी काफी नहीं होगा। There's only one thing that will be more than enough. केवल एक ही बात है जो आपके लिए काफी होगी, Is El Shaddai God. वो है एल शदाय It's परमेश्वर, our Jesus. वो है हमारा यीशु It's मसीह, that presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति ही It's है। that presence of God that's more than enough for you and me in every situation of our life. वो केवल परमेश्वर की उपस्थिति जो तुम्हारे और मेरे लिए जीवन के हर परिस्थिति में काफी है। And that presence of God promises to go in every area of your life. और वो केवल परमेश्वर की उपस्थिति जो वायदा करती कि आपके जीवन के हर एक जगह पर आपके साथ बनी रहे। Every good area, every high area, every low area, every broken area, every miserable area. हर एक अच्छी जगह, आपकी हर एक ऊंचे स्थानों की जगह, हर एक नीचे स्थानों की जगह, हर एक तकलीफों की जगह, हर एक जगह पर, And make you whole. और वो उसकी उपस्थिति आपको पूरा And करेगी। this lady was coming to Jesus. और ये जो स्त्री है वो यीशु मसीह के पास आती And है she didn't even know that there is a well that is there to make her whole. कि उसे पता नहीं था कि वहां पर एक कुआं है जो उसको पूरा कर सकता है। He knows which well you go to draw from. वो जानता है कि तुम कौन से कुएं के पास जाते हो और कहाँ से कुछ निकालने की Jesus कोशिश। sees each day of your life which well you are drawing from. यीशु मसीह आपके जीवन के हर एक दिन को देखते कि कौन से कुएं से आप पानी निकालते हो, And he's not angry with you. और वो आप पर क्रोधित नहीं है। All he's saying is केवल वो एक ही बात कहते हैं that try me. कि मुझे आजमा कर Let me देखो। tell you, try Jesus. यीशु मसीह को आजमा कर देखो। He's saying, ask me. वो कहता है मुझसे मांगो, Just like he told this lady. जिस प्रकार उन्होंने स्त्री से कहा। He says, ask me. उन्होंने कहा कि मुझसे मांगो, Because the water I give you, क्योंकि जो पानी मैं तुम्हें दूंगा, the water I give you जो जल मैं तुम्हें दूंगा, will be eternal, वो सार्वकालिक will be होगा, satisfying. वो आपको संतोषित You करेगा, you won't thirst no more. आपको वापस कभी प्यास नहीं लगेगी। And this lady, और ये जो स्त्री है she can't understand it. इस बात को समझ नहीं पाई। And she's like, Jesus, she's like, from where will you draw water? और वो ये सोचने लगती कि यीशु मसीह आप कहाँ से पानी निकालोगे अभी, Because she had the pots क्योंकि सारे घड़े उसके पास थे and Jesus was just sitting at the well. और यीशु मसीह तो ऐसे खाली उस कुएं के पास बैठे थे। And she questions Jesus, और वो यीशु मसीह से सवाल करती है, how will you give me this water when you don't even have anything to draw the well, to draw water from? कि आप मुझे इस कुएं से पानी कैसे पिलाओगे जब आपके पास कोई औजार नहीं है कि आप इस कुएं से पानी निकाल कर मुझे दो। See, she's looking at an emotion, she's looking at a physical need to be satisfied. कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो एक शारीरिक जरूरत को देख रही है कि जिस जरिए से वो तृप्त हो सकती है। But Jesus is going deeper in her soul and is talking about satisfying her from inside out. लेकिन यीशु मसीह उसके जीवन की गहराई में जा रहे हैं और उस जगह को देख रहे हैं जहां पर यीशु मसीह उसको तृप्त, उसकी जान को, उसकी आत्मा को तृप्त कर सकते हैं। We kind of question Jesus. हम कभी कभी यीशु मसीह को सवाल करते हैं, Like, Lord, how can you do this for me? प्रभु ये काम आप मेरे लिए कैसे कर सकते Lord, हो? I'm sitting in the middle of crisis and how can you be enough for me? कि प्रभु मैं मुसीबत के बीच बैठा हो प्रभु और आप मेरे लिए काफी कैसे हो सकते हो? Lord, my life is falling apart and how can you be enough for me? कि प्रभु मेरा जीवन तो यहाँ वहाँ बिखेर रहा है, प्रभु आप मेरे लिए काफी कैसे हो सकते Lord, I हो? have lost my job, but how can you be enough for कि me? प्रभु मैंने तो अपनी नौकरी गंवाई है, प्रभु आप मेरे लिए फिर काफी कैसे हो सकते हो? Lord, I don't have people in my life, but how can you be enough for me? कि प्रभु मेरे पास जीवन में अब लोग नहीं है, आप मेरे लिए कैसे काफी हो सकते हो? We question God, हम परमेश्वर से सवाल करते a हैं, God who is well able
able to do all things for us. जो परमेश्वर काबिल है हर एक काम हमारे लिए करने It's के लिए। not your problem how God will be enough for you. ये तुम्हारी समस्या नहीं कि परमेश्वर तुम्हारे लिए काफी कैसे होगा। Just trust Him for who He is. बस परमेश्वर जो है उस बात के लिए उस पर विश्वास Just रखे। trust Him for what He's done. जो उसने किया है उस बात के लिए उस पर विश्वास Just करे। know Him for the God He is. जिस जानो और उस पर भरोसा रखो कि वो परमेश्वर कैसा है। Because that's God's problem how He will satisfy you in any and every area of your life. कि वो परमेश्वर की ही समस्या है कि वो देख लेगा कि वो कैसे तुमको तुम्हारे जीवन के हर एक जगह और क्षेत्र में आपको संतोषित और तृप्त करेगा। I don't know which area of your life or which circumstance in your life you feel that it won't be enough. मुझे नहीं पता कि आपके जीवन के कौन सी जगह में आपको लगता है कि ये बात काफी नहीं होगी, But there's nothing that will make it enough. लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है जो उस बात को काफी और संतोषित करेगी। Just come to Jesus the way you are. जिस प्रकार आप हो, जैसे हो वैसे यीशु मसीह के पास आओ। Stop reasoning how He will meet your need. इस बात को सुलझाने की कोशिश ना करें कि यीशु मसीह कैसे आपकी जरूरत को पूरा Stop करेंगे। reasoning how He will fulfill you. ये सोचने की कोशिश ना करें कि यीशु मसीह उस बात को और आपको कैसा पूरा करेंगे। Stop reasoning how He'll be enough. ये सोचना बंद करें कि वो यीशु मसीह आपके लिए काफी कैसे Just होंगे। humble yourself and surrender to God, knowing that He is El Shaddai. बस अपने आप को लीन और नम्र कीजिए और अपने आप को सौंप दीजिए क्योंकि वो एल शदाई परमेश्वर I know है। we church folks, we think that we don't need this. कि कभी-कभी ऐसे होता है कि हम कलीसिया के सदस्य, हम लोग इतने पुराने, तो हमें लगता है कि हमें इस बात की जरूरत नहीं है, Because we feel क्योंकि हमें ऐसा लगता है and we know that God is the source of all our और blessings, हम ये जानते भी कि परमेश्वर हमारे सारे आशीषों का स्रोत है, which is true. जो कि सच्चाई है। But there are areas in our life, लेकिन जीवन में हमारे ऐसी भी जगह है, and I'm talking specifically to those areas. और मैं खास करके उन्हीं जगहों के विषय में कह रही हूँ। Maybe you have received salvation and you know that Jesus is the way to heaven and eternal life. शायद आपने उद्धार प्राप्त किया है और आप जानते हो कि यीशु मसीह केवल वो रास्ता है वो सार्वकालिक जीवन की ओर। But I'm speaking directly to those areas of your life where you feel God won't be enough. लेकिन मैं सीधे उन जगहों से बात कर रही हूँ आपके जो जीवन में जहाँ पर आपको लगता है कि परमेश्वर काफी नहीं होंगे Or you वहाँ, fail to trust God to be enough for you in that situation. या फिर आप असफल होते हो उस बात पर भरोसा करने के लिए कि परमेश्वर उस जगह के लिए काफी होगा। Trust Jesus. यीशु मसीह पर भरोसा He's करें, more than enough. वो काफी है। Trust Jesus. यीशु मसीह पे भरोसा करें, He's more than enough. वो काफी है। Well, God is able to give you all you need परमेश्वर आपको जो हर एक बात चाहिए वो देने के लिए काबिल है, in the right time, in the right way, in the right method. सही समय, सही तरीके से और सही मार्ग से। Just hold on to Him. बस उसको पकड़े रखो, Just trust Him परमेश्वर पर भरोसा रखो, because He's more than enough. क्योंकि वो काफी है। I'd like to take you to one more scripture. मैं आपको एक और वचन की ओर ले जाना चाहती And if हूँ। you could turn with me to 2 Peter हम दूसरा पत्रस इसकी ओर जाए, chapter 1, पहला अध्याय verses 3. और तीसरा उसका पद। We'll see the first half of the verse. हम पहला हिस्सा देखते हैं उस वचन का। By His divine power, God has given us everything we need for living a godly life. क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। And the scripture tells us और ये वचन हमसे कहता है that God has given you and me everything we need. कि परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे हर एक बात दी है जिसकी हमें जरूरत है। Look at your lives today. आज अपने जीवन को हम देखेंगे Look at the things that are in your life. कि जो जीवन में हमारी बातें उसको देखेंगे Look हम। at the people in your life. जो लोग जीवन में हैं, उनको देखेंगे हम And start valuing and start thanking God for them. और उनका मोल करना शुरू करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उन सब के लिए। Because what you need for today, your God has already provided for you. क्योंकि जो बात जिसकी जरूरत आपको आज है परमेश्वर ने पहले से आपको दे दी है। Just learn to be content in बस- His presence. Learn to trust God. परमेश्वर पर भरोसा करना I know सीखें। it's difficult in this time where everyone's losing jobs and the economy is falling and stuff like that happening all around us. मैं जानती हूँ कि ऐसे समय में काफी कठिन है कि लोग अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं और आर्थिक हालत अलग अलग राज्य की वो खराब होती जा रही है, But learn to trust God. लेकिन इसके बावजूद परमेश्वर पर भरोसा करना Because सीखिए। everything you have in your life is what your Maker wants you to have in order to have a godly life. क्योंकि आज आपके जीवन में जो भी बातें हैं वो केवल आपके सृष्टि बनाने वाले ने आपके जीवन में दी है ताकि आपका जीवन सफल और अच्छा And our रहे। God is not such that He's going to just, say, okay, now what He's given you, that's enough, and now He's not going to give you anything else, or you're not going to have anything more.
और हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपको जितना दिया है अब तक परमेश्वर कहेगा कि जो दिया है उसमें खुश रहो और आगे तुमको जो भी चाहिए मैं दूंगा नहीं, जितना भी है उसमें आप काम चला लो। Or ऐसा he's going नहीं। to give you a job and never going to promote you. या फिर आपको ऐसी नौकरी देकर आपको कभी उसमें बढ़ोतरी ना मिले, ऐसा नहीं होगा। Or give you some money and say live the rest of your life with it. या फिर थोड़े पैसे देकर आपसे ये उम्मीद रखे कि आप अपना पूरा जीवन उसी पैसे में चलाओ। Of course, he wants you to have desires, and of course, he wants you to have goals and ambitions to get higher in life. कि यकीनन वो चाहता है कि आपके पास ऐसी इच्छाएं हो कि आप अपने जीवन में बढ़ोतरी करो, सफलता हासिल करो And become better. और बेहतर बनो। He wants you to have that, and he's well able to fulfill every desire of your heart. वो चाहता है कि आप ये सारी चीजों की इच्छा रखो और वो आपके हृदय की हर एक इच्छा को पूरा कर सकता He's है। able to put a desire in your heart and fulfill it. वो काबिल है कि आपके दिल में वो एक इच्छा रखे और उस बात को पूरा भी करे। He's able to provide for you in each step of your life. कि आपके जीवन के हर एक कदम पर आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए वो काबिल है। And just as a loving father, even before he asks you, he knows what you need. और जैसे एक प्रेमी पिता होता है कि आप मांगने से पहले वो जानता है कि आपको क्या चाहिए, But he wants you to be content in today. लेकिन वो चाहता है कि आप तृप्त और संतोषित रहे आज में। With everything that you have, be content today. कि जो भी सारी बातें आपके पास आज है आप उसमें तृप्त और संतोषित रहे। And he's well able for you today and to provide for you today and tomorrow. और वो काबिल है कि आपके लिए वो आज जो भी चाहिए उसको देने के लिए और आने वाले दिनों में भी। Jesus is well able to go to the most deepest part of your life to Yes. satisfy you. यीशु मसीह काबिल है कि आपके जीवन के वो गहरे हिस्सों तक पहुंचने के लिए ताकि वो आपको संतोषित करे। All he wants us to do is admit to him, कि केवल वो चाहता है कि हम उसको सौंप दे सारी बात acknowledge him, और उसको स्वीकार करें, कबूल करें acknowledge him in our discontentment, कि हमारे जो असंतोषित जगह है उसमें यीशु मसीह की कबूली करें acknowledge him in our dissatisfaction. और ये जाने कि यीशु मसीह ही है वो जो हमारे सारे हालातों में हमें मदद कर सकते हैं। So when Jesus identified, so I'll just take you somewhere, when Jesus identified the woman's actual need, कि जहाँ पर यीशु मसीह ने पहचाना कि इस औरत की सच में जो जरूरत क्या है, you know what this lady does? पता है ये स्त्री क्या करती है? She quickly changes वो अचानक से बदल देती है and says और वो कहती है that yes, you are a prophet and so you know my life. कि आप तो भविष्यवक्ता और आप मेरे जीवन को जानते हो, But what about this social issue लेकिन ये सामाजिक जो समस्या है उसके बारे में क्या that you Jews कि आप यहूदी say that we should worship only in Jerusalem? कि आप कहते हो कि हमने केवल यरूशलेम में आराधना करनी See, है। she's trying to bring a social issue to cover the issue that she really dealing, where Jesus is ready to deal with her. तो वो कोशिश ये कर रही है कि जो यीशु मसीह जिस बात से उसको समझाने की कोशिश कर रही है, जो समस्या उसकी वैयक्तिक है, उस समस्या को ढकने के लिए वो एक सामाजिक समस्या को सामने ले आ रही है। And she's saying और वो ये कहती that है her ancestors worshipped in this mountain. कि उसके जितने भी पूर्वज थे वो इस पर्वत की ओर आकर उसको आराधना करते And हैं। why is it that the Jews have to be going to Jerusalem or are only to worship at और Jerusalem? फिर ऐसा क्यों है कि जो यहूदी है वो केवल यरूशलेम में ही आराधना करे? Well, my Jesus is wonderful. कि मेरा यीशु मसीह तो वैसे अद्भुत है। Well, I realized while reading it, और ये पढ़ते समय मुझे ये एहसास हुआ I felt so happy और मुझे बड़ी खुशी हुई to know that Jesus didn't just overlook her question. कि यीशु मसीह ने केवल उसके सवाल पर नजरअंदाज नहीं किया, In order to reach her on the inside, कि उसको अंदर वो उस जगह तक पहुंचने के लिए he wanted to satisfy every question that she brought to him. यीशु मसीह चाहते थे कि उसने जो भी सवाल यीशु मसीह से किया वो हर एक सवाल को जवाब देकर उसको तृप्त करने के And लिए। that he tells her और उस सवाल के जवाब में यीशु मसीह that कहते हैं woman, there is a day coming. कि औरत एक ऐसा दिन भी आ रहा है। Well, guys, I guess we are already in those days. और मैं विश्वास करती हूँ कि आज तो हम उन दिनों में हैं अभी। Well, woman, there's a day coming that you won't need a place to worship your maker. कि औरत एक ऐसा दिन आ रहा है जहाँ पर तुझे परमेश्वर की आराधना करने के लिए किसी जगह की जरूरत नहीं Well, होगी। there was a lockdown in our country, in our state, in our nations हमारे जो देश है, हमारे जितने राज्य है, सब जगह पर लॉकडाउन था। for these few months. पिछले कुछ महीनों से लॉकडाउन चल रहा था And it was impossible to worship
in the churches. और कलीसियाओं में जाकर आराधना करना काफी कठिन था। But let me tell you, there was nothing that could stop the church of God worshipping Christ. लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी जो परमेश्वर यीशु मसीह की कलीसिया को रोक पाई उसकी स्तुति आराधना Aren't करने you से। happy that we are living in a time where we are already worshipping God in spirit and truth? क्या आपको खुशी नहीं होती कि हम अब वो घड़ी में है जहाँ पर हम परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से आराधना We are करते हैं, already a part of that prophecy that has been fulfilled. कि वो भविष्यवाणी उसकी पूर्णता का आज हम वो एक हिस्सा है, That we can worship God in spirit and truth, and today, as this evening, we worshipped Him in our homes. कि जैसे हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई में कर सकते हैं जिस प्रकार आज शाम को भी हमने की है। Well, God is beautiful, परमेश्वर बड़ा सुंदर है and He's wise, और वो ज्ञानी भी है, and He's telling her, और वो स्त्री से कहते हैं and He's answering her, और उनका जवाब भी देते her हैं, every doubt, उसके हर एक शक को, her every need, उसके हर एक जरूरतों her को, every thought. उसके हर एक विचारों को। He wants to go in deep वो गहराई तक जाना चाहते हैं so that He can help her, कि ताकि वो उसकी मदद कर पाए, so that He can satisfy her from inside out. कि वो उसको अंदर से बाहर तक संतोषित कर And पाए। I want to tell you और मैं आपको कहना चाहती हूँ that God is ready कि परमेश्वर तैयार है to answer any question, जो भी सवाल है उस सब का जवाब देने, to break every boundaries कि हर एक जो सीमाएं हैं बंधन उनको तोड़ने, that the society or your thoughts have made जो समाज ने या फिर आपके खुद के विचारों ने बनाए हैं, in order to reach you and me, कि ताकि वो तुम तक और मुझ तक पहुंच पाए, to make us whole. कि ताकि वो हमें पूरा कर He पाए। knows where we are weak. वो जानता है कि हम कहाँ पर कमजोर हैं, He knows where we are discontent. वो जानता है कि हम कहाँ पर असंतोषित हैं, He knows every part of our life that's not perfect. वो जानता है हमारे जीवन के हर एक जगह को जो परिपूर्ण नहीं है, And He knows every part of our life that's incomplete. और वो जानता है हमारे जीवन के हर एक उन जगहों को जो खाली है, And He wants to go through that very part और which वो- you're trying to hide and cover up, और वो हर एक उन जगह तक जाना चाहता है जिसको हम छुपाने की कोशिश करते हैं, with others' problems, दूसरे समस्या को लेकर, with others' issues, दूसरे बातों को, संघर्ष को लेकर, or maybe like this woman with a social issue. या फिर इस औरत के समान की उस बात को ढकने के लिए वो सामाजिक तकलीफ और समस्या को लेकर आई। He wants to dig deeper यीशु मसीह गहरा जाना चाहते हैं and fill you. और आपको भरना चाहते Well, हैं। this evening, आज शाम को just take some time थोड़ा समय निकालिए, as you come in his, as you're in His presence, जैसे आप उसकी उपस्थिति में हो, to acknowledge those places in your life कि आप उन सारी जगहों को अपने जीवन में जो है उसको जानो, where you're drawing from कि जहाँ से आप निकालने की कोशिश करते हो and पानी, aren't enough. लेकिन वो सब करने के पश्चात वो काफी नहीं And you है। know those places that you'd have to go back tomorrow और आप जानते हो वो हर एक जगह जहाँ पर आपको कल फिर एक बार जाना पड़ेगा, to draw from. कि वहां से और अधिक निकालने की कोशिश में, There's nothing that's going to satisfy us or be enough for us क्योंकि ऐसी कोई भी बात नहीं जो हमें तृप्त करेगी या हमारे लिए काफी होगी, than our El Shaddai God. सिवाय हमारे एल शदाई Because He परमेश्वर के, promises us to be more than enough. क्योंकि वो वायदा करता है हमसे कि वो हमारे लिए काफी होगा। Just speak this over your life आज अपने जीवन पर इस बात को हम that कबूल He's more करेंगे than enough. कि वो परमेश्वर हमारे लिए He's काफी more है, than enough for my family. वो मेरे परिवार के लिए काफी है, He's more than enough for my job. मेरे काम के लिए वो काफी है, He's more than enough for my social life. मेरे सामाजिक जीवन के लिए वो काफी है, He's more than enough in those deep places of my failures. मेरे जितनी भी असफलताएं की गहराइयों तक वो परमेश्वर काफी है, He's more than enough. वो मेरे लिए काफी He's more है, than enough in my money. वो मेरे पैसे में काफी है, He's more than enough in my relationships. वो मेरे जितने नाते संबंध है उन सब में वो काफी है, He's more than enough. वो परमेश्वर काफी है। Just acknowledge those areas of your life अपने जीवन के हर एक ऐसे जगह को हम उनको कबूल करेंगे and यीशु, surrender in the presence of God और उन सब को यीशु मसीह को सौंप देंगे उसकी उपस्थिति में, and speak over your life और अपने जीवन पर हम कबूल that करेंगे ये God is more than enough. कि परमेश्वर काफी है, How we thank you, Lord Jesus. कि प्रभु यीशु मसीह कैसे धन्यवाद And दें we हम, praise you. और हम आपकी स्तुति करते हैं। We take this time to thank you for your word. प्रभु ये समय लेते प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, We take this time for thanking you for who you are in our lives. कि धन्यवाद देते प्रभु कि आप जो हो हमारे जीवन में प्रभु उसके लिए धन्यवाद देते हैं, And we speak your word in our lives. और प्रभु आपके वचन को प्रभु घोषित करते हैं हमारे जीवन में। And as we speak, we believe, Lord, that every area of our life that is not enough, you will
make it whole. और जैसे प्रभु हम घोषित करते हैं प्रभु कि हमारे जीवन का हर एक हिस्सा हर एक जगह जो काफी नहीं है प्रभु आपके मौजूदगी में प्रभु आप उसको काफी करोगे In प्रभु। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे। Please don't forget to like and subscribe to our channel भूलिएगा नहीं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें and share it with the people you love. और जिन लोगों से आप प्रेम रखते हो उनसे भी इसको शेयर करें। Bye bye.